Hello students of class 10. So today I am going to discuss the new topic of arithmetic progression. Already I have started in the previous lecture. I have already discussed what is an AP, okay, what is arithmetic progression, and I have discussed some of the examples of arithmetic progression, and also the exercise question also I have discussed. So I hope you are studying at home. Please practice more and more. I am telling you repeatedly. Okay, so please practice from book first of all, and then start with the extra questions. Okay, first of all you have to complete, you have to finish the book. Okay, so let us start the next topic, that is nth term, or we can say general term or last term. Okay, there are three names for AP. Okay, we have to find, suppose an AP is given. Okay, in that AP, suppose only three terms are given, first, second and third, and I want to find the 20th term. That means in position number 20, which number we can write. Okay, in 20th position, which number should be there. So how to find it? We have a process, we have steps. So what is the formula for finding general term of an AP? See, already I told you earlier also, we can write first term as A, okay, second term as A plus D. Whenever we want to find the second term, we have to add the fixed number, that is the common difference, to the first term. Okay. Similarly, we can find the third term by adding two fixed numbers. That means we have to double the fixed number, because we are going to find the third term. So we have to add the fixed number 2 times. That's why it is written 2D. So we are adding 2D to the first term to get the third term. So here we are finding the relation between the term which we have to find and with the first term. Always we are finding a relation with the first term only. Okay, if you want to find the 20th term, or you can say 15th term, then you have to find a relation with first term. Okay, that will be very simple. That's why we always find the relation with the first term only. So here also see, for finding the third term, we are connecting it with the first term. So see how we can find the third term. We can add twice D, that is 2D, to the first term. Similarly, fourth term will be A plus 3D. Okay, already I have discussed. Like that you can find 15, 16, 17, 18, 19th term, all term you can find. Okay, so if I want to find a general, that means I want to find a general term, that means a formula for for finding any term. Okay, for finding any term. Suppose आपको बोला जाता है 100 टर्म फाइंड करो, सपोज बोला जाता है 150 टर्म फाइंड करो, तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जैसे कि हम लोग आइडेंटिटी भी पढ़ चुके हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, अगर हमारे पास फॉर्मूला है तो हम लोग किसी का भी स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं ना. तो आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, उससे हम लोग कोई भी किसी का भी स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. सो सिमिलरली वी आर हैविंग वन फॉर्मूला फॉर nth टर्म, एंड दैट फॉर्मूला इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी. तो यहाँ पे क्या किया है, देखो सब्सक्रिप्ट के जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, जनरल के लिए n लिख रहे हैं. तो a तो कांस्टेंट है, वो तो रहेगा ही क्योंकि वो सब में ही है. देखो तो प्लस d भी रहेगा, देखो d सब में है. जस्ट मैंने लास्ट क्लास में बोला था क्या चेंज हो रहा है, ओनली d का कोफिशिएंट. सो देयर विल बी चेंज इन द कोफिशिएंट ऑफ d. सो कैसे चेंज हो रहा है हम लोग पहले से देखें. d यहाँ पे देखो सब्सक्रिप्ट में अगर 2 है तो d का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1. ओके, सो यहाँ सब्सक्रिप्ट में 3 है, मतलब d का कोफिशिएंट क्या है, उससे एक कम, यानी कि 2. सिमिलरली 4 है तो यहाँ देखो 3 है, एक कम है ना. ये हम लोग को मिल रहा है, यहाँ से पैटर्न पता चल रहा है. सिमिलरली अगर a n के लिए हम लोग निकालना चाहते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, n से अगर एक कम हम लोग को करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, n माइनस 1. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड द nth टर्म, और यू कैन से दिस इज कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ एन AP, or we can say last term of an AP. कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है कि लास्ट टर्म फाइंड करना है, तब भी हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. कभी 22nd टर्म फाइंड करना है, तब भी ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, देखो जैसे मुझे एक AP दिया है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. तो
फर्स्ट पोजीशन को हम लोग कैसे लिखते हैं? फर्स्ट पोजीशन को लिखते हैं A1 या फिर A. सेकेंड पोजीशन वी कैन राइट इट एज A2, सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे 2. सिमिलरली दिस विल बी व्हाट? A3, थर्ड टर्म. ठीक है, ये पोजीशन को डिनोट कर रहा है. थर्ड टर्म में 6 है, फोर्थ टर्म में क्या है? 8 है. सो ये सब क्या है? ये सब पोजीशन को डिनोट कर रहा है. ठीक है, उस पोजीशन में क्या नंबर है वो डिनोट कर रहा है. ये नंबर सबस्क्रिप्ट में हो गया पोजीशन, और पूरा होल जो A3 है वो पोजीशन में क्या नंबर है वो हम मतलब डिफाइन कर रहे हैं. सिमिलरली अगर हम लोग 22nd टर्म निकालना चाहते हैं तो A22 लिखना होगा. तो A22 लिखोगे तो यहाँ n के जगह 22, यहाँ क्या हो जाएगा? A प्लस 22 माइनस 1. 22 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 21. तो A प्लस 21 दिया जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुम लोग को हमेशा याद रखना है. और क्लास 10 में नहीं, 11 में भी तुम लोग को ये जरूरत पड़ेगा. 11 में भी चैप्टर है तुम्हारा सीक्वेंस का, सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें भी पढ़ना है. तो हमेशा तुम लोग को ये जरूरत पड़ेगा. जहां पे भी देखोगे एक पैटर्न, एक सीक्वेंस एपी में है, तो हम लोग कोई भी कुछ भी फॉर्मूला, ये फॉर्मूला से हम लोग जनरल टर्म को फाइंड कर सकते हैं. यहां तक कि अगर मान लो जनरल टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन रेफरेंस भी दिया है, तो हम लोग उसका नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज n को फाइंड कर सकते हैं. यानी उस एपी में कितना नंबर ऑफ टर्म्स है उसको हम फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज n. तो यहाँ पे an को हम लोग किस तरह से लिखेंगे? an तो यही हो गया जनरल टर्म, और यू कैन से लास्ट टर्म. a क्या है? फर्स्ट टर्म. n क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जितना टर्म्स है वहां पे उसको हम लोग बोल रहे हैं n. d क्या है? कॉमन डिफरेंस.